A warm welcome to you all, students. Today, our topic of discussion is the third law of Mendel, and that is the law of independent assortment. Before this, we have already seen two laws. That is, the first law was the law of dominance, and the second was law of segregation or the law of purity of gametes. Now, we have to discuss about the law of independent assortment. Now, this law basically includes the experiments which were based on the crosses between the plants including two traits. That means the cross was a dihybrid cross. Earlier, the two laws which we had studied, that is the law of dominance and the law of segregation, there we had considered only a monohybrid cross, that is a cross involving just one character, the alternative forms of a character. But here we are going to discuss about a dihybrid cross, that is a cross which is involving or which is taking into consideration two different genes and their alternative forms, that is their alleles. Okay, so what are these what is this dihybrid cross? So basically, a dihybrid cross is a breeding experiment between two organisms which are identical hybrids for two traits. In other words, a dihybrid cross is a cross between two organisms with both being heterozygous for two different traits. The individuals in this type of traits are homozygous for a specific trait, and these traits are determined by the DNA segments called genes. Okay, so that means that a dihybrid cross is what? It is a cross between two organisms which are having two different or you can say two different characters. Okay, two different characters or two different genes with the alternative forms. The parents carry different pairs of alleles for each trait. ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में व्हाट वाज द कंडीशन कि देयर वाज ओनली वन कैरेक्टर और वन ट्रेट विच वी वर कंसिडरिंग. ठीक है, लेकिन उस वन ट्रेट के या उस वन कैरेक्टर के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे. इफ़ यू कंसिडर हाइट, देन वी वर कंसिडरिंग आइदर टॉल और ड्वार्फ स्पीशीज, इजंट इट? Now here, what is the condition? We will be considering two characters or two traits. For example, if we are considering the shape of the seed, we will also consider the size of the seed at the same time. That means shape and size of the seed are the two different characters, isn't it? So if we are considering about two different characters, then that cross is known as a dihybrid cross. Now in this cross, one parent carries homozygous dominant allele. Okay, like in the monohybrid cross, what we were considering was capital T was homozygous tall and small t homozygous dwarf, isn't it? One parent was homozygous tall and other was homozygous recessive. Here also the same condition कि if you are considering two characters in one parent, so both will be homozygous, and in other will homozygous dominant, and in other parent it will be homozygous recessive. When we will doing the cross, then it will be more clear to you, but for the timing, just keep in mind that dihybrid means di means two and hybrid means what? Combination. That is a combination of two different genes. Okay, so the offspring produced after the cross in the F1 generation are all heterozygous for specific traits. These lines will be clear when we will be considering the cross. So basically, Mendel, what did he do was that Mendel in his dihybrid cross, he considered two traits, each having two alleles. दो traits को या दो characters को मेंडल ने कंसिडर किया क्रॉस कराने के टाइम, और हर एक जीन का या हर एक कैरेक्टर का एक अल्टरनेटिव फॉर्म था जिसको हम अलील कहते हैं. ठीक है, जैसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, एक कैरेक्टर कंसिडर किया था हाइट, तो उसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स थे टॉल और ड्वार्फ. अब यहाँ पे दो कैरेक्टर्स एक साथ उन्होंने कंसिडर किया, सीड का शेप भी और सीड का कलर भी. ठीक है, तो अब उसके भी दो फॉर्म्स हो सकते हैं. शेप में दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, राउंड एंड रिंकल्ड, एंड कलर में ग्रीन और येलो. ओके, so he crossed wrinkled green seed and round yellow seeds and observed that all the first generation progeny, F1 progeny, were round yellow.
ठीक है, उन्होंने क्या किया कि 2 पेरेंट प्लांट्स लिए जो होमोजाइगस थे अपने अपने कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है। एक जो पेरेंट था, पेरेंट प्लांट वॉज हैविंग होमोजाइगस मतलब प्योर राउंड एंड येलो सीड्स, एंड अनदर प्लांट प्रोड्यूस्ड प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। जब इन दोनों प्लांट्स को क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी में क्या रिजल्ट आया कि जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए वो सारे के सारे कैसे थे, राउंड और येलो थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था राउंड और येलो सीड्स का, वो चूँकि F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ही कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस मेंट द डोमिनेंट ट्रेट्स वर द राउंड शेप एंड द येलो color. Okay, and then what happened in the F2, then he self-pollinated the F1 progeny and he obtained 4 different traits in the ratio 9:3:3:1. So firstly let's consider the cross and then only we will be able to understand. So you can see in the figure given here, it is clearly stated, you can see a yellow color seed which is totally round in shape. Another seed is green in color and that is quite wrinkled, isn't it? Round and yellow and wrinkled and seed. तो मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने एक प्लांट लिया जिसमें सिर्फ प्योरली होमोजाइगसली कौन से सीड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, राउंड और येलो। एक और प्लांट लिया जो रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। इन दोनों का जब उन्होंने क्रॉस कराया तो पहले F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे थे, ऑल वेयर राउंड एंड येलो सीड प्रोड्यूसिंग, ठीक है। नाउ वन थिंग मोर, यू कैन सी द कॉम्बिनेशन मेंशनड हियर, इट इज कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y. You can see here this capital R is for homozygous round, capital Y is for homozygous yellow seeds, small r and small y is for small r is for wrinkled seeds homozygous, and small y is for green seeds, that is the also homozygous condition, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस वी वर कंसिडरिंग जस्ट 1 ट्रेट्स, इजंट इट, कैपिटल T और स्मॉल t था। अब यहाँ पे क्या है, 2 अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, राउंड शेप भी है जो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, कैपिटल R या स्मॉल r से, और उसका जो कलर है दैट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Y एंड स्मॉल y, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस क्रॉस इज़ व्हाट, डाई हाइब्रिड क्रॉस। और यहाँ पे जो ट्रू ब्रीडिंग लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है कि सारे अलील्स क्या हैं, सारे अलील्स कैपिटल लेटर्स में है, दे आर ऑफ द सेम टाइप, तो वो होमोजाइगस है, ओके। नेक्स्ट इज, सो व्हेन दीज कैरेक्टर्स वे क्रॉस, सो F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे प्रोड्यूस हुए, यू कैन सी F1 जनरेशन इज अगेन येलो एंड राउंड इन शेप, ठीक है। तो जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया तो उनको कैसे प्लांट्स मिले, ऐसे प्लांट्स जो कि राउंड और येलो सीड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। तो यहाँ पे साफ रिप्रेजेंट हो रहा है कि फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन कंक्लूड वेरी क्लियरली कि राउंड और येलो कलर जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसीलिए इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन, isn't it? But on the other hand, this green and wrinkled seed cannot express itself in the F1 generation. It remain hidden. इसका मतलब कि small r and small y कैसा है, that is the recessive character which was not able to express itself in the, so wrinkled and green color seed cannot express itself in the F1 generation. Okay, so that means this character is what, it is the dominant character and this character is the recessive. तो डाईहाइब्रिड में भी हम देख सकते हैं कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था दैट इज़ द लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट रूल और दैट लॉ इज़ क्लियरली फॉलोड, यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट व्हाट ही डिड वाज कि दिस F1 प्रोजेनी को उन्होंने सेल्फिंग कराई विथ कैपिटल R, कैपिटल Y एंड स्मॉल y. Okay, now what result did he get?
You can see here parental generation was round and yellow, wrinkled and green. ठीक है, इसके गैमीट्स बने थे. अच्छा, वन थिंग मोर कि गैमीट्स कैसे बनते हैं. जैसे कि वी हैड स्टडीड अबाउट कैपिटल टी, स्मॉल टी. तो गैमीट्स हो गए कैपिटल टी, ओके, स्मॉल टी, isn't it? These were the gametes. ओके, सिमिलरली हियर ऑल्सो गैमीट्स कैसे बनेंगे. अब यहाँ पे चूँकि 2 ही थे अलील्स, यहाँ पे 4 अलील्स है या 4 जीन्स कह सकते हैं साथ में है, तो 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक है, जब 2 जीन्स थे यहाँ पे तो कितने पॉसिबल गैमीट्स बन रहे थे, 2. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब सॉरी कैसे कॉम्बिनेशन बन रहा था, सिंगल कॉम्बिनेशन बन रहा था गैमीट्स के फॉर्म में. अब यहाँ गैमीट्स बनेगा तो कैसे बनेगा, डबल फॉर्म में. ये कैपिटल आर विद दिस कैपिटल वाई, ओके, एंड दिस कैपिटल आर विद दिस कैपिटल वाई. ठीक है, समझ में आई बात. क्योंकि गैमीट्स जब बनता है तो क्या है, उसको हैप्लॉइड होना है ना, इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये डिप्लॉयड फॉर्म में है और अब ये क्या हो गया, हाफ नंबर में हो गया. कि नहीं गया. ठीक है, पहले क्या थे 4 इसमें कॉम्बिनेशंस, 4 जीन्स है, लेकिन जब गैमीट का फॉर्मेशन होना होता है तो मियोसिस होती है जिसमें कि नंबर ऑफ जीन्स क्या है या नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, है ना. तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो गए तो सिर्फ 2 ही जीन्स जो है वो एक गैमीट में आ पाया, इज़न्ट इट. सेम इज़ विद दिस ऑल्सो. इसके क्या गैमीट्स बनेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई, isn't it? So these are the gametes. Okay, so you can see here कि कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई को F1 जनरेशन में जब गैमीट्स बने तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई. और हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई. ठीक है, नेक्स्ट इज कि दिस F1 जनरेशन प्रोजेनी दैट इज राउंड एंड येलो हेट्रोजाइगसली. ठीक है, ये भी राउंड एंड येलो है, पेरेंटल जनरेशन भी और F1 जनरेशन भी राउंड एंड येलो है, लेकिन ये राउंड एंड येलो कैसा है, दैट इज़ हेट्रोजाइगस. क्योंकि सारे के सारे एलील्स क्या हैं, डिफरेंट है, और यहाँ पे सारे के सारे एलील्स क्या हैं, प्योर हैं, सेम है. समझ में आई बात. ओके, सो दिस नेक्स्ट स्टेप मेंडल डिड वॉज कि ही जस्ट सेल्फ क्रॉस दिस F1 प्रोजेनी. तो जब सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमें पता है कि कैसे कराते हैं कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हम उसी तरह के किसी भी सेल से क्रॉस कराएंगे, दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसके पॉसिबल गैमीट्स बनाएंगे. तो पॉसिबल गैमीट्स क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का पॉसिबल गैमीट्स क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई. दिस you got it. Capital R with this capital Y, capital R with small y, small r with capital Y and small r with small y. So this is how we make the gametes. ठीक है. Then if we have to represent the cross, we'll make this Punnett square. तो जितने टोटल नंबर ऑफ गैमीट्स होते हैं उतने ही हम रोज और कॉलम्स बनाते हैं. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है. So we will arrange all the types of gametes on the 2 sides of the Punnett square and then we will simply cross them. ठीक है. तो कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर देन कैपिटल वाई कैपिटल वाई. ओके, देन you can see here capital R then capital Y small y. ओके, लाइक दिस वी विल मेक द क्रॉस. तो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन किसके हैं, F2 जनरेशन के हैं. ठीक है, दीज ऑल आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ F2 जनरेशंस.
अब यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स क्या क्या हुए, वी कैन सी हियर वेरी क्लियरली कि कैपिटल आर, और यहाँ पे थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा हमें. ओके, वी हैव टू जस्ट एनालाइज द फिनोटाइप कि जो जीनोटाइप्स प्रोड्यूस हुए हैं तो उनका क्या फिनोटाइप आएगा. तो वो कैसे एनालाइज करते हैं, आई विल टेल यू. सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन बना है दैट इज कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई. ठीक है, दिस वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन वी विल फॉलो द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, अगर एक भी कैपिटल में हुआ, ठीक है, एक भी जीनोटाइप में एक भी जीन कैपिटल में होगा तो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई द वेरी फर्स्ट कॉम्बिनेशन. तो इसमें क्या है कि सारे लेटर्स या सारे जीन्स क्या हैं, कैपिटल लेटर्स में हैं. तो जब सारे जीन्स कैपिटल में हैं इसका मतलब कि सारे के सारे होमोजाइगस कंडीशन में हैं, एक ही जैसे हैं, और कैसे होंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा. इजंट इट? कैपिटल आर इज व्हाट, डोमिनेंट. ठीक है, राउंड कलर इज डोमिनेंट एंड ओवर रिंकल्ड, and sorry, round shape is dominant over wrinkled and yellow color is dominant over green. ठीक है, तो अगर हम डोमिनेंट कैरेक्टर राउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से, और रेसेसिव को कर रहे हैं स्मॉल से, और येलो को जो कि डोमिनेंट कलर है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल वाई से, और ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल वाई से. तो जो हमारा कॉम्बिनेशन बना F2 में कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि सेम टू सेम ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है. तो ये कैसा होगा, इसका फिनोटाइप राउंड एंड येलो होगा. अंडरस्टूड? नाउ इफ़ वी कंसिडर दिस सेकेंड क्रॉस दैट इज़ कैपिटल आर कैपिटल वाई. अब अगर हम इसको एनालाइज करें, यू कैन सी हियर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इट इज़ फॉलोइंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस. हमें पता है कि अगर एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है तो इसका फिनोटाइप कैसा होगा, डोमिनेंट ही होगा. इजंट इट? तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है स्मॉल आर है, इसका मतलब कि कैपिटल आर एक है चूँकि, तो ये कैसा होगा, द सीड्स विल बी राउंड इन शेप. ओके, और फिर अगर कलर की बात करें तो दोनों ही कैपिटल में है येलो, तो इसका मतलब कि ये इसका कलर होगा येलो और शेप हो गया राउंड. Understood? Now if we talk about the third combination कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर चूँकि ऑलरेडी दोनों कैपिटल में है तो ऑब्वियसली कलर शेप कैसा होगा, राउंड होगा. और चूँकि कलर जो है वो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है और एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है, तो वो फिर से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली दिस कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर एक भी कैपिटल लेटर होगा एक कैरेक्टर में तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही रिप्रेजेंट होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, अच्छा, इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ कि कैसा होगा, वो रिंकल्ड होगा क्योंकि ये प्योरली होमोजाइगस कंडीशन है. ठीक है, लेकिन कैपिटल वाई है, इसका मतलब कि ये वाला कैरेक्टर है दैट इज़ द डोमिनेंट इन कलर, तो कलर कैसा होगा, येलो. ठीक है, देन अगेन यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, लाइक यू कैन टेक दिस वन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर बोथ आर व्हाट, रेसेसिव, तो रेसेसिव में रिंकल्ड हो जाएगा. यू कैन सी द शेप, एंड चूँकि कलर में क्या है, एक कैपिटल वाई प्रेजेंट है इसलिए कलर कैसा होगा, डोमिनेंट होगा, दैट इज विल बी येलो. अंडरस्टूड? नाउ इफ़ वी कंसिडर दिस कैरेक्टर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो कैपिटल आर है, इसका मतलब कि सीट कैसा होगा, डोमिनेंट इन शेप होगा, दैट इज़ राउंड होगा. और चूँकि ये दोनों येलो स्मॉल वाई है, इसका मतलब वो कैसा होगा, ग्रीन इन कलर होगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, रेसेसिव होमोजाइगस जीन्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन अगेन यू कैन सी दिस कैपिटल आर स्मॉल वाई, चूँकि एक कैपिटल लेटर है वहाँ पे, एक कैपिटल जीन है वहाँ पे राउंड में, इसका मतलब कि सीट कैसा होगा, राउंड होगा, लेकिन कलर कैसा होगा, दैट विल बी ग्रीन इन कलर बिकॉज बोथ द कलर्स आर स्मॉल वाई जीन. ठीक है,
Now if you consider this character again, that is again like that only, स्मॉल आर का मतलब कि रेसेसिव कैरेक्टर है शेप के मामले में, तो रेसेसिवनेस किस में क्या है, रिंकल्ड, इसका मतलब ये रिंकल्ड होगा, लेकिन कलर के मामले में क्या है, ये डोमिनेंट ही है, इसलिए यहाँ पे येलो कलर है, ठीक है। एंड इफ यू कंसिडर द लास्ट कैरेक्टर small r and small y, that is again the purely parental character. इसका मतलब first character this and the last character this, वो purely कैसा है, that is the parental combination. बाकी जितने भी combination हमें मिले वो सारे के सारे कैसे हैं, वो combined form के हैं, ठीक है। it is a recombinant form और these are the hybrids. तो फिनोटाइपली अगर हम देखें तो वी आर गेटिंग राउंड और येलो सीड्स हैं 9 इन नंबर, यू कैन जस्ट काउंट, ओके लेट्स काउंट, राउंड एंड येलो, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, okay 9. So that is round and yellow. Then if we talk about round and green, तो round and green कितने हैं, so that is only 3, that is 1 2 and 3, okay. wrinkled and yellow कितने हैं, 1 2 3, okay, so that is 3. और wrinkled and green कितने हैं, just 1, okay. So phenotypically the character are 9:3:3:1, okay. So this is the phenotypic ratio of the phenotypic ratio of this dihybrid cross, ठीक है। and what will be the genotypic ratio will be quite complicated, क्योंकि यहाँ पे बहुत कई तरह की जेनेटिक कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। बेसिकली द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ द डाईहाइब्रिड क्रॉस इज 1:2:4:1:2:1:2:1. This is the genotypic ratio of the dihybrid cross. This is basically asked in your NEET competitive examinations, okay. But for your board point of view, only the phenotypic ratio is generally being asked because it's quite complicated, okay. You can just find out the combinations ki how many type are is 2, how many type are 4 and 1 and so on, okay. You can just find out the genotypes and accordingly the genotypic ratio will be 1:2:2:4:1:2:1:2:1, okay. So basically anyways, so this was the dihybrid cross. Now what was the conclusion, ठीक है। अगर इफ़ यू सम अप दिस एक्सपेरिमेंट, तो सबसे पहले मेंडल ने व्हाट डिड ही डू कि उन्होंने 2 प्लांट्स लिए और 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर किया। उन्होंने ऐसे प्लांट्स चूज़ किए, पहला जिसमें सीड्स तो प्रोड्यूस होते ही थे, मगर सीड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, राउंड और येलो कलर की, और दूसरा प्लांट लिया जिसमें रिंकल्ड और ग्रीन कलर के सीड्स प्रोड्यूस हो रहे थे। और दोनों ही कैरेक्टर्स थे वो अपने में क्या थे, होमोजाइगस कैरेक्टर्स थे। और रिज़ल्ट ये हुआ कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस हुए, दे वर ऑल्सो राउंड एंड येलो, मगर दे वर हेट्रोजाइगस इन कंडीशन विच फॉलोज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब जब इसका गैमीट्स हम बनाएंगे, इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे F1 जनरेशन के प्रोजेनी को F1 से ही, तो हमें पॉसिबल गैमीट्स क्या मिलेंगे, कैपिटल R स्मॉल कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y and small r small y. And with the help of the Punnett square, when we'll make the crosses, we will obtain so many combinations. Total how many combinations are there? 16 combinations, isn't it? You can see the combinations total are 16 combination, because how many gametes we are getting? We are getting 4 maternal gametes and 4 paternal gametes, isn't it? So altogether 16 combinations are possible, out of which round and yellow were 9 in color, round and green were 3 in number, round and yellow were 9 in number, round and green 3 in number, wrinkled and yellow 3 in number, and wrinkled and green 1 in number.
This was the observation made by Mendel. Now, what was the inference or the conclusion made by Mendel with regard to this experiment? So the inference was, he used the term independent assortment. Now what does this mean is that separate genes for separate traits are passed independently of one another from parents to offspring. Just analyze this line. Separate genes for separate traits. Separate genes means capital R, capital Y, small r, or generally capital R, capital Y, small r and small y. ठीक है, तो R letter is for the shape and Y letter is for the color. ओके, सो यहाँ पे दो सेपरेट जीन्स हो गए फॉर सेपरेट ट्रेट्स. दे आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर. पास्ड मीन्स दे आर इनहेरिटेड. Inheritance of these two genes are independent of one another from parents to offsprings. Means कि the parental, अगर lame in simple language if we say, the parental combinations were round and yellow and wrinkled and green, and for these traits two different genes were involved. ठीक है, जब F2 का कॉम्बिनेशंस बना तो इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो जीन्स है हमारे ऑल टुगेदर अगर हम कंसिडर करें तो कितनी जीन्स है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई. ऑल टुगेदर ये 4 डिफरेंट जीन्स है. ठीक है, जिसमें से आर और आर क्या है, एक जीन के 2 फॉर्म्स है, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई क्या है, वो दूसरे जीन्स के 2 अलग अलग फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो इनका इनहेरिटेंस कैसा है, ऐसा है कि इन चारों जीन्स के थ्रू जितने भी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये सारे जितने भी 16 कॉम्बिनेशंस बने हैं, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट हैं. मीन्स सारे के सारे जीन्स, चारों के चारों जीन्स बिल्कुल फ्री हैं कि वो किसी के भी साथ जाके कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो सारे के सारे या मोस्ट ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स F2 के कैसे होते, वैसे ही होते जैसे कि उनके पेरेंट्स हैं. समझ में आई बात, यू फॉलो, कि अगर इन असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, असॉर्ट का मतलब होता है अलग अलग सेपरेट होना या असाइन होना या किसी के साथ कंबाइन होना. ठीक है, तो असॉर्ट करना, चीज़ें क्या होते हैं ना, हम लोग सॉर्ट आउट द मैटर, वैसे ना सॉर्ट आउट, सॉर्ट करना, तो सॉर्ट से ही वर्ड आया असॉर्ट. इसका मतलब कि ये जो गैमीट का फॉर्मेशन होता है, गैमीट का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के दौरान. तो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम ये जो सारे गैमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है, तो ये गैमीट्स आपस में, इन गैमीट्स के अंदर जो ये चारों जीन्स है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपस में एक दूसरे के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. कोई फिक्स नहीं है कि कैपिटल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ ही जाएगा या कैपिटल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ ही जाएगा. ठीक है, ऐसा कोई फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, जिसका जो मन वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स. मीन्स इफ़ वी आर कंसिडरिंग अ dihybrid cross which involves 2 different genes for 2 different characters, ठीक है, having alternative forms, then the combination produced in the generations are totally independent of one another. Okay, so Mendel's law of independent assortment state that genes do not influence each other with regard to sorting of alleles into gametes. Every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur. Means all these combinations, all these alleles, they are free to combine with any one of the following. That is why so many combinations are possible. अगर ऐसा नहीं होता तो सारे के सारे, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पैरेंटल, जो प्योर पैरेंटल कंडीशन है वो क्या थी, 1 यहाँ पे और एक लास्ट में. बाकी की ये सारे जितने भी कॉम्बिनेशन है ये क्या है, ये प्योरली हाइब्रिड हैं. मतलब कि क्या है कि एक दूसरे से कॉम्बाइन करके बनाए. फॉर एग्ज़ाम्पल कि इफ़ 4 फ्रेंड्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है,
4 in one group and 4 in one group, altogether 8 students are sitting together, suppose. ठीक है, तो and if I ask those 8 students to just make every possible combination with any पार्टनर, तो क्या होगा कि हर एक स्टूडेंट फ्री होगा कि कोई भी किसी के साथ भी पेयरिंग कर सकता है. ठीक है, तो जितने ही कॉम्बिनेशंस, जितनी ही फ्रीडम उसको मिलेगी उतनी ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मिलेगा. अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ़ अ पर्टिकुलर पर्सन इज़ देयर, इफ़ अ पर्टिकुलर सपोज अ चाइल्ड इज़ देयर, ठीक है, और उसके पास उसके क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, सो if he is given freedom, if he is not independent on anyone, ठीक है, dependent on anyone, so he can just make friendship with anyone in the class, isn't it? तो जो possible उसकी pairings होंगे वो क्या होंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, so that is what is stated in Mendel's law of independent assortment. So okay, so the law of independent assortment states that a gamete into which an R allele sorted would be equally likely to contain either a capital Y allele or a small y allele. ठीक है, similarly the gamete which is having the capital R, Y, ठीक है, each gamete it can make combination with small r also, and it can make combination with capital R also. Okay, so thus there are 4 equal likely gametes that can be formed when the capital Y, small y, capital R, small r heterozygote is self crossed as follows, that is capital R, capital Y, small r, capital Y, small y, capital R, small y, and small r, small y. And so if when we will arrange all these gametes in the Punnett square, the total combinations we will get will be 16 in the phenotypic ratio form, that is 9:3:3:1. Okay, so that means कि capital R can make a combination with capital Y also and with small y also, and small r can make combination with capital Y also and small y also, and likewise. Okay, so this is what the law of independent assortment states. Once again I am just repeating that what is Mendel's law of independent assortment. It states that the genes do not influence each other. ठीक है, आपस में सारे के सारे एक दूसरे की इंडिपेंडेंट होते हैं और कोई भी किसी के साथ भी ईजिली कॉम्बिनेशन बना सकता है. ठीक है, जब एलील्स का फॉर्मेशन होगा तो ये गैमीट्स ये जो एलील्स हैं जीन्स के, वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी दूसरे एलील के साथ कॉम्बिनेशन बना ले जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है. ठीक है, सो the genes do not influence each other with regard to the sorting of alleles into gametes, and every possible combination of alleles for every gene is equally likely to occur. अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता कि सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनते, ना कि सारे रिकम्बाइंड या हाइब्रिड फॉर्म्स. लेकिन ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल दीज जीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं. ठीक है, और वो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने में capable है. Okay, so this was the law of independent assortment, that is the third law given by Mendel. Okay, thank you.